watching this video, it's because you are considering taking the IELTS exams for scholarship or for immigration purposes and you're looking for some guidance. Hi, I am Amna and I've been a professional English language teacher for 5 years. In this video, I'll give you a brief introduction to IELTS. We will cover what IELTS is, how to go about it, how much time you would need to prepare for the test, where you can take the exams, about fee structures, etc. So hopefully by the end of this video you will have a clearer picture of what IELTS is all about. Also, I'll be covering the main contents of this video in Urdu and Hindi language as well, so that Urdu and Hindi speakers can understand this video completely. Moving on. So these are the contents of this video. We are going to talk about IELTS, its format, the types of IELTS tests, test centers, fee structures, required bands, and how much time you would need to prepare for it. IELTS. It stands for International English Language Testing System. As the word suggests, it tests your language proficiency. So it's a very standardized English language proficiency test which is designed to assess someone's ability to understand, speak, read and write in English language. It is widely accepted. Its importance can be considered in this aspect that it is widely accepted and recognized by universities, colleges, employers, immigration authorities in many English-speaking countries, and that is why it is very important. There are two main IELTS tests available that you can take. The one is known as IELTS Academic and the other one is known as IELTS General Training. So these are the two types and they both have different purposes. So IELTS Academics, it is primarily for those students who want to study in a university or college. So if you want to go abroad and you want to secure a scholarship, you would want to appear in IELTS Academic. And then the other one is General Training IELTS. It is for those students, those people who are seeking work or immigration opportunities. So basically IELTS जो है वो क्या है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है और इसका जो मेन मकसद है वो ये फाइंड आउट करना है कि किसी की भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी क्या है. अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी को मेजर करने के लिए ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सिस्टम है जो कि हर जगह एक्सेप्ट होता है, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर. और उसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि दो तरह के टेस्ट होते हैं आइल्स के. एक कहलाता है आइल्स एकेडमिक और दूसरा कहलाता है आइल्स जनरल ट्रेनिंग. आइल्स एकेडमिक यूजुअली वो स्टूडेंट्स, वो लोग टेस्ट देते हैं जो कि स्कॉलरशिप के ज़रिए आगे जाना चाहते हैं, जो कि अपना बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं. एंड जनरल ट्रेनिंग वाला जो आइल्स है, इट इज़ फॉर दोज जो कि वर्क वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन चाहते हैं, तो उनके लिए ये है. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ टेस्ट अवेलेबल. अब इट डिपेंड्स कि आप कौन सा वाला टेस्ट करना चाहते हैं और आपका पर्पज़ क्या है. ठीक है, चलें जी, लेट्स मूव ऑन. Band score. So IELTS measure proficiency in English language by using a band score. By not a percentage or grade or CGPA. ऐसा कुछ नहीं है. It uses a band score system. So the IELTS band score system ranges from 0 to 9. 9 is the highest level of proficiency and 0 is the lowest scores. So each of the 4 sections of English language, for example, listening, reading, writing, speaking, they are assessed separately. So you will be getting bands for each band separately, for each skill separately, and then the average will be calculated. All right. So basically होगा क्या कि that IELTS में जो है आपकी मेजरमेंट आपके इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स की कैसे होगी, थ्रू बैंड्स. इसमें कोई परसेंटेज नहीं होता है, इसमें पास और फेल नहीं होता है, इसमें कोई ग्रेड नहीं आता है, बैंड्स के जरिए होगी. और वो बैंड्स क्या है, 0 से 9. 0 का मतलब है कि बहुत लोएस्ट बैंड्स हैं, जिस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे एक्सपर्ट यूज़र जो है वो 9 बैंड्स होते हैं, इससे ऊपर नहीं होता. ठीक है. अब होगा क्या कि आपके 4 स्किल्स जो होते हैं फॉर किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसे असेस किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. सो लिसनिंग के लिए भी लिसनिंग के लिए यू विल बी गेटिंग अ सेपरेट बैंड स्कोर, फॉर रीडिंग सेपरेट, फॉर राइटिंग सेपरेट, फॉर स्पीकिंग सेपरेट. और फिर जो फाइनल बैंड स्कोर होगा वो क्या होगा, इनका एवरेज होगा. सो ऑल 3 एडेड डिवाइडेड बाय 4 और जो आपका एवरेज बैंड बनेगा वो आपका एक मेन आइल्स का बैंड स्कोर कहलाएगा. अब नाउ इट डिपेंड्स कि एट टाइम्स जब आप कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ राइटिंग प्रोफिशिएंसी की बहुत नीड होती है. तो दे वुड वांट स्पेसिफिकली कि आपके कहीं ओवरऑल बैंड स्कोर जितना भी हो बट आपके राइटिंग के अंदर स्पेसिफिकली 6.5 हो या 7 हो, तो फिर आपको उस हिसाब से मेहनत करनी होती है. एक्सक्यूज मी. एंड देन फॉर स्पीकिंग ऐसा हो सकता है कि कहीं किसी जगह की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हों,
तो दे वुड वांट कि आपके स्पीकिंग के बैंड स्कोर इतना हो, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। और ये स्पेसिफिकेशंस जो हैं ये आप जहाँ अप्लाई कर रहे हैं या जो आपका पर्पज़ है उसके ऊपर वेरी करता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि व्हाट बैंड्स आर रिक्वायर्ड। So the required IELTS band score for scholarship or immigration can vary depending on the country you are applying, institution or program. ठीक है, so जहाँ पर भी आप apply करें, it depends on that. Different countries and different organizations have their specific requirements, but always keep in mind that these vary, these change with the passage of time. तो आप ये मैं जो बता रही हूँ, these are not fixed. ये सिर्फ और सिर्फ just to give you an idea कि किस तरह से हो सकता है, बट दीज आर नॉट फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप, अगर आपको कनाडा के लिए स्कॉलरशिप चाहिए सो इट वेरीज फ्रॉम 6 बैंड्स टू 8 बैंड्स। अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री या किसी और चीज़ नॉमिनी के लिए तो 6 से 9 बैंड्स। द मोर यूल स्कोर, उतना ही आपका स्कोर ज़्यादा होता है, आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से यूएस में आपको स्कॉलरशिप 6.5 और हायर चाहिए होती है। इन यूके यू वुड नीड 5.5 और 6.5। तो अगेन इट डिपेंड्स, ये कोई भी चीज़ जो है ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी के रिक्वायर्ड बैंड्स क्या हैं। तो व्हेन यू आर अप्लाइंग यू हैव टू गो थ्रू देयर वेबसाइट्स, और वेबसाइट के जहाँ पे लिखा होता है कि इतने बैंड्स रिक्वायर्ड हैं, सो यू हैव टू एम दैट। हमेशा 0.5 ऊपर एक्स्ट्रा एम करें सो दैट कोई प्रॉब्लम हो तो आपके जो रिक्वायर्ड बैंड्स हैं वो आ जाएं, ठीक है। सो आपको वेबसाइट्स गो थ्रू करनी होती हैं, और अगर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी फिक्स्ड होता है ऑब्वियसली। तो आपने वो सब चीज़ें, ये डिपेंड करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो आपने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, बट टिपिकली यू शुड एम 5.5 अबव, ठीक है। 5.5 बिलो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। 5.5 अबव जितना ज़्यादा स्कोर होता है उतना ज़्यादा आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी और द चांसेस ऑफ गेटिंग इमिग्रेशन वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज द सेक्शन ऑफ द IELTS। तो अब IELTS जो है वो कितने सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेन सेक्शंस एंड ऑल दीज सेक्शंस आर डिजाइंड टू असेस योर प्रोफिशिएंसी in different aspects of the English language. These 4 sections are listening, reading, writing, and speaking. So the listening test is typically of 30 minutes and it consists of 4 recorded monologues and conversations. So basically the two or three people will be talking to each other. You will be listening to their conversation and then you will be answering the question based on their conversation. ठीक है। सो देयर विल बी क्वेश्चंस राइट इन फ्रंट ऑफ यू और आपको एक ऑडियो जो है वो प्ले होगी, वो आप ऑडियो सुनेंगे और उस ऑडियो की बेसिस के ऊपर उस वहाँ पे जो सवाल होंगे यू विल हैव टू आंसर दैट। सो लिसनिंग इस तरह से होगा। एंड बट एक और चीज़ ये कि दैट यू विल बी लिसनिंग टू अ रेंज ऑफ एक्सेंट एंड स्पोकन मटीरियल। तो डिफरेंट एक्सेंट्स आप सुनेंगे, तो आप उन एक्सेंट को जितना अच्छे से समझ पाएंगे ऑब्वियसली उतने ही अच्छे से आप उसको रिप्लाई भी कर पाएंगे, ठीक है। एंड दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड with each section it increases difficulty level. So complexity जो है will get increase as you move on to the next section. तो listening 30 minutes का होगा, उन 30 minutes में आप ऑडियो सुनेंगे और आप उसको रिप्लाई करेंगे और इसके 4 sections होंगे, ठीक है। आ जाते हैं अब रीडिंग की तरफ। द रीडिंग सेक्शन इट इंक्लूड्स 3 लॉन्ग टेक्स्ट, बहुत लॉन्ग से टेक्स्ट होंगे एंड which are usually extracted from books, from newspaper, from magazines and online resources. अब उसमें होगा क्या that you will be required to answer a variety of question types. The question types would be multiple choice questions, it can be matching information, it can be true and false. तो हर तरह के होते हैं, आपने उससे उस तरह से उसको आंसर करना है, ठीक है। 60 मिनट्स का होता है और डिफरेंट टेक्स्ट होते हैं और हर टेक्स्ट जो है वो विद अगेन हर सेक्शन जो है वो पिछले सेक्शन से डिफ़िकल्ट होता जाता है, ठीक है। अच्छा जी, एंड फॉर राइटिंग 60 मिनट्स और द राइटिंग सेक्शन के अंदर हमेशा यू विल बी गेटिंग 2 टास्क। टास्क 1 जो है वो 20 मिनट्स का होता है, टास्क 2 जो है वो 40 मिनट्स का होता है। तो अगर आप एकेडमिक IELTS की तरफ जा रहे हैं सो हो सकता है कि पहले टास्क के अंदर आपसे पूछा जाए, कोई चार्ट दे दें, कोई विजुअल दे दें, कोई डायग्राम दे दें, ग्राफ दे दें और आप कहें कि आप इसको रीड करें, इंटरप्रेट करें एंड देन राइट योर इंटरप्रिटेशन। सो यू विल बी आस्क्ड टू राइट दैट। जनरल अगर ट्रेनिंग में जाएंगे तो हो सकता है आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी एंड देन यू विल बी आस्क्ड टू राइट अ लेटर। सो इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा वाला जो है वो IELTS एग्ज़ाम दे रहे हैं। अच्छा जी, जो टास्क 2 होता है सो यू विल बी आस्क्ड टू राइट एन एसे इन रिस्पॉन्स टू अ प्रॉम्प्ट। सो यू विल बी गिवन अ प्रॉम्प्ट
और वो प्रॉम्प्ट जो है वो आर्गुमेंटेटिव भी हो सकता है, वो किसी भी किस्म, वो इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है, और आपने उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग लिखना होता है, ठीक है। सो जो मेन जो इस एक्टिविटी का पर्पज़ है, इट विल असेस योर एबिलिटी टू प्रेजेंट एन आर्गुमेंट, to provide evidence and how you are developing your ideas coherently. सो बेसिकली यहाँ पर आपकी एक्चुअल राइटिंग स्किल्स मेजर होंगी कि आप किस तरह से अपने पॉइंट को फॉर्म कर पा रहे हैं और कोहेरेंटली प्रेजेंट कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग विल बी असेस्ड, ठीक है। सो राइटिंग जो है वो इस तरह से होगी, 60 मिनट्स का होगा, ठीक है। अब बात आ जाती है आपकी स्पीकिंग टास्क की। सो स्पीकिंग टास्क जो है वो यूजुअली 11 से 14 मिनट्स का होता है, ठीक है। अब इसके अंदर दो तरह के स्पीकिंग के सेशंस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि फेस टू फेस के तहत द अदर पर्सन वुड बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू और वो आपसे सवाल करेंगे एंड यू विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन। दूसरा ये हो सकता है कि ऑनलाइन हो, ऑनलाइन में अ पर्सन विल बी सिटिंग, वो आपसे सवाल करेंगे थ्रू कंप्यूटर और आपने उनको देखते हुए जवाब देना है, ठीक है। अगेन आइल्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ओरिजिनल NIC। कभी भी अपना टेस्ट आप बुक नहीं करवाइएगा अगर आपके पास ओरिजिनल NIC या पासपोर्ट ना हो, बिकॉज उसके बगैर वो आपको कभी भी आइल्स एग्ज़ाम में अपेयर होने नहीं देंगे। अच्छा जी, सो बेसिकली स्पीकिंग में क्या होगा कि दो तरह के हैं और उसमें 11 से 14 मिनट्स का होगा। पहले पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन होता है, बेसिकली वो आपसे पूछते हैं कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वहाँ पर आपका नाम पूछा जाता है, आपकी आइडेंटिफिकेशन वो देखते हैं, वो आपका ID कार्ड देखते हैं, आपका पासपोर्ट देखते हैं, अगर वो जो भी अवेलेबल, जो भी आप लेकर आएँ अपनी आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आपको एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है, उसके ऊपर आपको कहते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम ले लें, आप प्रिपेयर कर लें और उसके ऊपर आपको बोलना है, ठीक है। सो यू विल बी गिवन 1 मिनट टू प्रिपेयर एंड देन यू विल हैव टू स्पीक अबाउट द टॉपिक फॉर अबाउट 2 मिनट्स और 3 मिनट्स, डिपेंड जो जितना आपसे सुनना चाहते हैं। जब उनको लग जाता है ठीक है, देन दे स्टॉप यू, ठीक है। द पार्ट 3 इज़ अ काइंड ऑफ डिस्कशन। सो यू विल बी engaged in a more abstract discussion with the examiner, और हो सकता है वो वही टास्क 2 में जो आपने जवाब दिया है उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस करें, क्रॉस क्वेश्चनिंग्स करें, सो दैट आप ज़्यादा बोलें। कोशिश ये कीजिएगा कि जब बोल रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे आंसर्स मत दें, बिकॉज दे वोंट बी एबल टू असेस योर स्पीकिंग स्किल्स। So that is why it's very important कि when you are speaking use longer sentences, coherence हो, ideas connected हो और आप बहुत अच्छे से समझ कर उनका आंसर दे सकें, ठीक है। सो स्पीकिंग स्किल्स जो है वो 11 से 14 मिनट्स की होगी। अब यूजुअली होता क्या है कि द टोटल आइल्स एग्जाम इट अप्रॉक्सीमेटली टेक्स 2 hours and 45 minutes, ठीक है। द लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शंस दे आर यूजुअली completed in one single sitting। इसमें होता ये कि स्पीकिंग के लिए आपको थोड़ा टाइम दे दिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग से फ्री होते हैं एंड देन आपको कहते हैं प्लीज़ वेट, और फिर आपका स्पीकिंग का सेशन होता है। अच्छा ये भी होता है कि दैट यू कैन बुक योर स्पीकिंग सेशन इन सम अदर टाइम एज वेल, तो आप किसी और दिन भी बुक कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है। अच्छा जी, और लेकिन ये आपके पास इतना टाइम होता है, विद इन अ वीक आपने यही बुक करना होता है सेशन, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हैं जो कि आपने जहन में रखनी है। सो दीज आर द बेसिक सेक्शंस ऑफ द आइल्स। अब हम ये देखते हैं कि आइल्स जो है वो बेसिकली दो तरह से दिया जाता है। वो 2 टाइप्स कौन सी, लेट्स हैव अ लुक। ओके, सो दीज आर द 2 मेन वेज ऑफ टेकिंग आइल्स एग्जाम्स। एक कहलाता है द पेपर बेस्ड टेस्ट एंड द अदर वन इज नोन एज द कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट। अब पेपर बेस्ड क्या है? इट इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल फॉर्मेट. It is a very traditional format of the IELTS exams in which you will be receiving a physical question booklets for listening, reading and writing. ठीक है, अब speaking session will be conducted face to face with an examiner and then you will be marking your answers directly on the question paper. और बहुत सारे जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो यूजुअली दे प्रेफर कि आप जो हैं वो पेपर बेस्ड कर लें। अब पता है पेपर बेस्ड में प्रॉब्लम क्या आता है? फॉर रीडिंग इट इज़ ओके दैट आपको हार्ड कॉपी के ज़रिए रीड करना अच्छा लगता है, देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। मेन प्रॉब्लम आता है इन राइटिंग, बिकॉज राइटिंग इज़ ऑल अबाउट एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग और लिखा, फिर ऑब्वियसली इतना टाइम होता नहीं है बट फिर भी थोड़ी बहुत तो इश्यूज़ आते हैं जो कि आप करेक्ट करना चाहते हैं। अब पेपर पे आप कैसे करेंगे? तो वो बहुत मैसी हो जाता है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स टू गो फॉर कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट, बिकॉज अब वहाँ पे एडिटिंग का जो है वो ऑप्शन अवेलेबल होता है। एंड फॉर कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट क्या होता है कि आपको हेडफोन्स दिए जाते हैं, आपको एक स्पेस दिया जाता है और वहाँ पे आप लिसनिंग के लिए हेडफोन से सुनते हैं और उसके बाद लिखते हैं, आंसर्स लिखते हैं। फॉर रीडिंग ऑब्वियसली कंप्यूटर डिलीवर्ड का मतलब है कि कंप्यूटर के थ्रू वो टेस्ट जो है
कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। So both of these formats are designed to assess your English language proficiency, और अब it totally depends on your preference level. अगर आपको जिस तरह से अच्छा लगता है आप उस तरह से करें, बट अगेन जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं इस वक्त आपने प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करनी है, ठीक है। सो इफ़ यू आर इनटू पेपर बेस्ड आइल्स टेस्ट, तो आपने पेपर के ऊपर ही आइल्स की बाकायदा बुक बाय करके आपने टेस्ट करना है, राइटिंग करनी है, सब कुछ करना है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर दैट। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स, तो ऑब्वियसली फिर आपने कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू शेयर, द वैलिडिटी. So the validity of an IELTS score, it depends on the organization and the institution that is using it. Typically क्या होता है कि that IELTS scores are considered valid for a period of 2 years. इसका मतलब ये कि that most universities, colleges और immigration वाले जितने भी offices होते हैं, they accept your IELTS score जो कि 2 साल से पुराना ना हो, ठीक है। तो आपका जो टेस्ट है वो 2 साल तक वैलिड रहता है। 2 साल बाद अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रीअपेयर करना होगा, मतलब रीअपेयर होना होगा टेस्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, टेस्ट सेंटर्स जो हैं वो बहुत जगह हैं, 2 बॉडीज़ जो हैं वो करवाती हैं आई टेस्ट। द फर्स्ट इज़ नोन एज ITP एंड द अदर वन इज़ ब्रिटिश काउंसिल। इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, बट आई थिंक दे बोथ आर सेम। और आपने इसी तरीके किसी भी टेस्ट जहाँ पे आपका टेस्ट सेंटर करीब है आपके लिए जो फीसिबिलिटी है आप वो कर लें। अच्छा, ये जो लिंक है आई विल बी पेस्टिंग दैट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से अपना टेस्ट सेंटर देख लें, आप जिस भी सिटी जिस भी कंट्री के अंदर हैं वहाँ पे अपना टेस्ट सेंटर देख लें और बुक योर टेस्ट जब भी आपको करना है, ठीक है। एग्ज़ाम फी जो है मैंने पाकिस्तानी रुपीज़ में लिखा है, इट वेरीज। जिस तरह से डॉलर्स के रेट जो हैं वो आगे पीछे होते हैं, इस तरीके से इसके रेट भी होते हैं, कोई फिक्स नहीं है। सो इन पाकिस्तान जो इस वक्त इसकी रेंज जो चल रही है वो 47,000 से 55,000 है, ठीक है। अगेन जहाँ डिपेंड करता है आप जहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से जो अमाउंट है वो वेरी करेगा। अच्छा जी, अब बात आ जाती है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि भाई हमें कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम वुड आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस। सो नाउ द अमाउंट ऑफ टाइम इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल, कितना ज़्यादा उनकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है और कितना ज़्यादा वो कमिटेड है। सो इफ़ यू हैव एन इंटरमीडिएट प्रोफिशेंसी यू वुड नीड 1 to 3 months. इफ़ यू हैव एन एडवांस प्रोफिशेंसी तो आपको 1 month के अंदर भी हो जाता है, 2 months। अगेन कितना टाइम दे रहे हैं आप प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छे नहीं हैं और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली यू वुड नीड 3 to 6 years, ठीक है। सो ये पूरा पूरा डिपेंड करता है कि आप कितनी, आपकी कमिटमेंट कितनी है, आप मेहनत कितनी करना चाह रहे हैं। अगेन इफ़ यू आर एमिंग फॉर अ हायर बैंड स्कोर तो आपने उसी हिसाब से मेहनत करनी है, ठीक है। इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप क्या कर सकते हैं कि आप आई विल बी पेस्टिंग द लिंक ऑफ अ वेबसाइट जहाँ पे आपको सैम्पल क्वेश्चंस जो हैं वो अवेलेबल होंगे। पूरा टेस्ट जिस तरह से लिया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, आप वो अटैम्प्ट करें, ठीक है। वहाँ पे देखें आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, वहाँ पे आप जितना भी स्कोर कर पा रहे हैं तो आप 0.5 उससे कम ही लें, ठीक है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त आप किस पोजीशन में हैं और आप किस लेवल पर हैं और आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। और आइल्स एकेडमिक जो है वो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है जनरल आइल्स के, ठीक है। तो अगर आपको आइल्स एकेडमिक करना है तो आपको उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी है। और राइटिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि आपके पास कोई ट्यूटर हो तो आप उसके फीडबैक लें, इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि बाकी लिसनिंग और रीडिंग के लिए जो है चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगेन आई विल बी मेकिंग सम वीडियोज़ ऑन इम्प्रूविंग दोज स्किल्स एज वेल। सो वो सब चीज़ें भी मैं आई विल ऑल्सो कवर। So that is about it. So I hope you found this video useful. So your feedback is very important for me, so please share your reviews in the comment section. And if there is anything you feel I may have missed, or if you have any specific question in your mind, please do not hesitate and let me know in the comments. And this is not I forgot to remove this reallyGreatSite.com, so forget it. So I'll be making videos on improving each skills for your IELTS exams as well. So if you are interested in enhancing your language skills, please consider subscribing to my channel. And thank you so much for watching.
आई होप आपने enjoy किया होगा and you have learned something new from me. Thank you so much. Allah Hafiz.